Good morning, students. Today we are continuing with the chapter number 2, that is functions. Yesterday I have given you the practice questions for doing the practice of the previous part which we have done. As in the beginning of this chapter we have done that the functions are of three types. The first one is called as your built-in functions. Second, we have done with the functions defined in modules. And the third part of the function is that is your user-defined functions. We have started our chapter with this only, but in detail now we are going to study. Like, what do you mean by user-defined functions? As if the name indicates user. User means a person, means हम लोग जो प्रोग्राम क्रिएट करते हैं. We people are the users. So user-defined function मतलब हम अपनी functions की definitions खुद define कर सकते हैं. That is called as a user-defined function. How to create them? There are few basic rules about it. Number one, for creating a user-defined function, we have to use the reserved word called as def, and then we have to give the name of the function with by which name we want to call that function, and then we have to terminate it with the colon sign. That every function header or the function name should be suffixed by your colon sign. After that, we have to use the indentation, which is the second part of it. Indentation may, whatever you will write, whatever the lines will come, they all will be read in the same function, with the same function name. Right? Suppose I have written print a hello world, print goodbye. So these two lines are having the same indentation, due to which whenever I'll call function 1, fun1, automatically these two lines will get executed. Now, for calling a function, we don't have to do anything. We just have to write the name of the function. That is fun1 function, and then this way the function will be called. And when this function will be called, then the output of this program will become hello world goodbye. Right? How it comes like this? Like it will read the first statement because my main program starts from here only. So fun1 पढ़ेगा, fun1 से सीधा कर्सर कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पर, और इसके नीचे आके पढ़ेगा क्या लिखा हुआ है? प्रिंट हेलो वर्ड. तो वो पहली बार में लिखेगा हेलो वर्ड, देन लिखेगा प्रिंट गुड बाय, देन आ जाएगा प्रिंट गुड बाय. So when we are writing the functions लिखते वक्त बस तीन चीजें मेन होती हैं. The first one is called as your function header or the function name, and the second one is called as your indentation, and the third one is called as your function call. कि how it is being written. Right? Now next part is that the function may or may not have the return values. जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन वैल्यू रिटर्न करे. कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं. जो फंक्शंस वैल्यू रिटर्न नहीं करते, दे आर ऑफ वॉइड टाइप एंड दे डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू. जो फंक्शन वॉइड टाइप के नहीं होते, नॉट वॉइड टाइप जो फंक्शंस होते हैं, दे विल रिटर्न अ वैल्यू, and the value which they return, that value can be a literal, that can be a variable, that can be an expression also. Well, literal means, as we have already read about the literals, literal means values, variable means identifier, and expression means where we are using the arithmetic operators. For example, this function can return 5, can return 6 plus 5, 6 plus 4. यहाँ पर जो आपका 5 है, 6 plus 4 है, they all are both are the values, means they both of them are the literals. Now here I am writing a raised to the power 3. So these are called as my variable. Now expression में क्या है? I am returning the value of some expression here. Right? It can be a plus b plus c, it can be a plus b divided by c, it can be a plus 8 raised to the power 2 divided by b, whatever it can be, but an expression can be returned with the help of a function. Now the return value of the function should be used in the caller function. Means ये जो return value हमारी होती है, ये हमेशा कहाँ पर return की जाती है? जिस function जहाँ पर हम उसे कॉल करते हैं वहीं पे ये वैल्यू रिटर्न करता है. आई एम जस्ट राइटिंग वन एग्जांपल ऑफ इट. आई जस्ट शो यू दैट. Suppose if I'll write, that is your def sum within my brackets x comma y colon and s is equal to x plus y
and then I'll say return s. After that I'll write print goodbye या print sum is equal to comma s and s, right? And after that if I'll say that res is equivalent to sum of 10 comma 20, and then if I'll say print within my brackets sum of 10 and 20 is equal to comma res, and then bracket close. Or if I'll say print res print, I can say sum 5 comma 6, I can say print within my brackets sum 4 comma 5 greater than 6. Suppose if I'll write the definition of my function like this, that is I have defined a function, user defined function named as sum, which contains 2 parameters in it, right? And in this function, what this function is going to do is it will calculate the sum of 2 variables, that is x and y, and return the value of s, right? And then I've written print sum is equal to, the indentation of all 3 lines are like this, means all 3 lines will be read in the function named as sum. Now this indentation is out of this, so we are using it as a main program here. ये मेरा क्या consider हो रहा है? That is considered as a main program. It will start reading my program from here, that is res is equal to sum within my brackets 10 comma 20, which means that it will go from here to here, where 10 value goes to x and 20 value will go to y. Now s is equal to 10 plus 20. Return s करने का मतलब हुआ ये वैल्यू यहाँ से वापस किसके पास आ गई, यहाँ पर. तो res में मेरा जो रिजल्ट आया वो कितना आया, 30 आया. It will not read this statement because whenever there is a return statement in my user defined function, it means this is the ending of that function. यहाँ से हमारा प्रोग्राम एंड अप हो जाता है जब भी वो रिटर्न पड़ेगा. रिटर्न के नीचे अगर कोई भी लाइन लिखी है, आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन उन लाइंस को नहीं पढ़ता. रिटर्न पे वो क्या करता है, प्रोग्राम को फिनिश करता है एंड इट विल गो बैक टू रेस इज इक्वल टू 30. अब प्रिंट अगर मैंने बोला सम ऑफ 10 एंड 20 इज इक्वल टू, तो रिजल्ट में क्या देगा, 30. नाउ नेक्स्ट लाइन में लिखा है प्रिंट सम विद इन माई ब्रैकेट्स 5 कॉमा 6. अब वो यहाँ से सीधा कहाँ जा रहा है, इसके पास जा रहा है. अब 5 की वैल्यू किस में चली गई, x में, 6 किस में चला गया, y में. तो मेरा सम कितना हो गया, 5 प्लस 6 इज 11. रिटर्न s का मतलब वो वापस यहाँ पर प्रिंट वैल्यू मुझे क्या देगा, फर्स्ट लाइन में मेरा आउटपुट क्या आएगा, दैट इज सम ऑफ 10 and 20 is equal to 30. सेकेंड लाइन में वो डायरेक्टली मुझे क्या प्रिंट करेगा, 11. फोर्थ लाइन में मैंने क्या लिखा है, प्रिंट सम 4,5 मीन्स वो यहाँ से जब ऊपर जाएगा 4 प्लस 5 करेगा, तो 4 प्लस 5 कितना हो गया, 9. अब रिटर्न एस कर रहा है तो यहाँ 9 रिटर्न हो जाएगा, इस जगह पर 9 आ जाएगा. वो कहता है 9 इज ग्रेटर देन 6 है, वैल्यू इज ट्रू, तो इट विल रिटर्न 1, राइट. बूल वैल्यू क्या रिटर्न हो जाएगी, ट्रू रिटर्न करेगा, या फिर वो यहाँ पे क्या रिटर्न करता है, हमें 1 रिटर्न करता है. 1 मीन्स true. So this is the way how a function can have a return value in it. It's not compulsory that each function should have a return because इससे पहले वाला function जो हमने लिखा था उसके अंदर return नहीं था, तो that was a void function, मतलब the function which is not returning any value. Now in this function we are having a return statement which is returning some value. अब कभी ऐसा भी होता है, कई फंक्शंस ऐसे भी आते हैं जिनके अंदर हम रिटर्न तो यूज कर रहे हैं लेकिन वो रिटर्न कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने उसे बोला प्रिंट विद इन माई ब्रैकेट्स सम इज इक्वल टू डबल कोट्स कॉमा s. नाउ आई सेड रिटर्न. Now this function contains the return statement, but this return statement do not return any value. It means क्या हुआ कि वो print इसका sum क्या print कर देगा, that is your sum is equal to s की value print करेगा. फर्स्ट टाइम जब ये लेके जाएगा सम को 10 20, यहाँ पर s की वैल्यू को बीच में क्या डाल देगा, दैट इज 30. अब यहाँ क्या लिखा, प्रिंट सम इज इक्वल टू दिस. अब यहाँ पर ये फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू. जब ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो इट मीन्स इट इज रिटर्निंग अ नन वैल्यू इन इट. Suppose if I'll say sum
विद इन माई ब्रैकेट्स 10, 20। इतना प्रोग्राम लिख करके मैंने इसे फिनिश किया। तो ये मेरा मेन प्रोग्राम की लाइन हो गई। यहाँ ये फंक्शन कॉल हो गया हमारा, दिस इज कॉल्ड एज माई फंक्शन कॉल। अब वो क्या करेगा, इस कॉल को यहां से लेके जाएगा यहाँ पर, 10 वैल्यू चली गई x में, 20 वैल्यू चली गई y में, x प्लस वाई दैट इज 30। तो प्रिंट क्या करेगा, आउटपुट वैल्यू मुझे क्या रिटर्न करेगा, सम इज इक्वल टू 30। अब यहाँ रिटर्न तो जरूर है, तो रिटर्न मतलब जब वो वापस आएगा तो आउटपुट में क्या डिफाइन करेगा, इट विल डिफाइन इट एज नन। Fine. So means the function can contain a return statement in it, and there can be without return. If they are without return, it means those functions are called as my void data type, void functions. And if I'm giving the return statement in it, whether it contains a literal value or an expression or without an expression, even then this will be called as my the non-void function. Pause. A function can return multiple values also. For example, if I have written a definition of a function that is def square x comma y comma z colon and return x into x, y into y and z into z, and I'm calling this function in a variable called as t. Now t is equal to square of 2, 3 and 4. This way it will go to this function call will go to this function where 2 will be for x, 3 will be for y and 4 will be for z. Now होगा क्या, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4. It means जो t की वैल्यू आएगी वो मेरे पास यहाँ पर किस फॉर्म में आएगी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ टपल। Why? Because लेफ्ट साइड पे मैंने सिर्फ एक वेरिएबल का नाम डिफाइन किया है, मतलब दैट वन वेरिएबल कंटेन्स द मल्टीपल वैल्यूज इन इट। और जब एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज हमारी राइट साइड पर होती है तो देन इट इज कंसीडर्ड एज अ टपल, राइट। नाउ मैंने उसे बोला प्रिंट करो टी को, तो वो मुझे टपल की फॉर्म में इन वैल्यूज को रिटर्न करके देगा, राइट। नाउ इट्स नॉट कंपल्सरी दैट द मल्टीपल वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड इन अ टपल ओनली। हम डिफरेंट वेरिएबल्स में भी ये वाली वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। अगर मैंने लेफ्ट साइड पे 3 डिफरेंट वेरिएबल्स के नाम डिफाइन किए हैं एंड आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन इज रिटर्निंग 3 डिफरेंट वैल्यूज, देन ईच वैल्यू विल बी फॉर ईच वेरिएबल, राइट। यहाँ पे जो मेरी उसने x इंटू एक्स की वैल्यू रिटर्न करेगा वो किसके लिए हो जाएगी, v1 के लिए। y इंटू वाई की जो वैल्यू होगी वो किसके लिए हो जाएगी, v2 के लिए। और z इंटू जेड वैल्यू जो होगी वो किसके लिए हो जाएगी, v3 के लिए। अब अगर मैं उसे कहती हूँ प्रिंट v1, v2, v3, तो वो मुझे डिस्प्ले क्या करेगा, 4, एक स्पेस देगा 9, फिर एक स्पेस देगा और फिर क्या लिखेगा 16। इट मीन्स व्हेन वी आर रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम अ फंक्शन, देन it can be returned in the form of a tuple or it can be stored in an individual variable. Now we are proceeding with the next topic, that is called as your parameters or the arguments in a function. Now what do you mean by parameters, what do you mean by arguments? Because जब भी मैं def function बना रही हूँ मैं साथ में कहती हूँ I am passing the parameters. So you should know what do you mean by a parameter. Whenever we are giving the definition of a user defined function, the variables which we are passing in it, they are called as my parameters, right? And return, as you know that the function can return a value or an expression, it is returning an expression called as p into r into t. And this statement means we are calling a function. When we are calling a function, again we are passing some values in it, where we always say that the first value will match with the first variable, second value should match with the second variable, and the third value should match with the third variable. It means p means 4000, r means 30 and t means 5. So function call में मैंने जो values pass करी, these values are called as my arguments. So arguments हमारे क्या हो गए, the value which are passed, which are being passed during the function call are called as my arguments, and the values which are passed, which are received by the variables during the function definition, they are called as my parameters. Here p, r and t are called as my parameters and 4030 and 5 is called as my argument. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर? अभी मैं इसके बाद इन दोनों को एक ही नाम से बुलाऊंगी, बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। हमें एक ही चीज याद रखनी है कि जो पैरामीटर्स होते हैं वो हमेशा वैल्यू क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। किस में रिसीव करते हैं, इन द फंक्शन डेफिनेशन। और जो आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो वैल्यूज को पास करते हैं, कहां पर पास करते हैं, इन द फंक्शन कॉल। तो एक बात क्लियर हो गई, अगर मुझे पैरामीटर लर्न करना है तो आई हैव टू लर्न दैट इज पी डी,
PD मीन्स P फॉर पैरामीटर एंड D फॉर डेफिनेशन. मतलब पैरामीटर्स आपकी वो वैल्यूज हैं विच आर रिसीव्ड ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल एंड आर्ग्यूमेंट आपकी वो वैल्यूज हैं विच आर बीइंग पास ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम. एक और डिफरेंस इन दोनों के बीच में है एंड व्हाट इज दैट कि आर्ग्यूमेंट्स जो है वो हमारी कुछ भी हो सकती है. दे कैन बी अ लिटरल मीन्स वैल्यूज हो सकती है, दे कैन बी वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, दे कैन बी एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं. वेयरएज जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं दे कैन बी ओनली एंड ओनली वेरिएबल्स. वो सिर्फ वेरिएबल्स हो सकते हैं. यहाँ पे ना तो हम वैल्यूज लिख सकते हैं और ना ही हम एक्सप्रेशंस इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं. तो दो डिफरेंसेस हमारे पास आते हैं. पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का थियरी का आता है और क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट होता है, राइट, जहां पे वो कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट. यानी कि हम उसको पैरामीटर भी कह सकते हैं, हम इसको आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं. अब उसने 2 वर्ड आगे लगा दिए, एक का नाम एक्चुअल लिख दिया, एक का नाम फॉर्मल लिख दिया. जब वो एक्चुअल बोलेगा तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शन कॉल, और जब वो आपका फॉर्मल बोलेगा इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शन डेफिनेशन. मीन्स द पैरामीटर्स विच आर पास्ड ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल. मतलब जब हम पास करेंगे ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल तो ये पैरामीटर्स ये मेरे क्या कहलाएंगे, दे आर कॉल्ड एज माय एक्चुअल वन. अब अगर मैंने बोला द वैल्यूज और द वेरिएबल्स विच आर पास्ड which are received during the function definition, they are called as my formal parameters or arguments. So P R T मेरे कौन हो गए, फॉर्मल पैरामीटर्स हो गए, और मेरे 4030 एंड 5 मेरे कौन हो गए, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स. एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर की डेफिनेशन होती है और 1 नंबर का आपके पास एग्जाम्पल होता है. यू कैन राइट दिस एग्जाम्पल एंड यू कैन राइट द डेफिनेशन इन 2 फॉर्म्स. नंबर 1 दैट एक्चुअल पैरामीटर्स आर द वैल्यूज विच आर पास ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल, एंड फॉर्मल पैरामीटर्स आपके पास क्या आ जाएंगे, द वैल्यू द वेरिएबल्स विच आर रिसीव्ड ड्यूरिंग द फंक्शन डेफिनेशन, दे आर कॉल्ड एज माय फंक्शन फॉर्मल पैरामीटर्स, राइट. इसी से कनेक्टेड हमारे पास एक और है दैट इज कॉल्ड बाय वैल्यू एंड कॉल्ड बाय रेफरेंस. कॉल्ड बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक्चुअली एनी चेंजेस डन इन द फॉर्मल पैरामीटर. अगर मैं फॉर्मल पैरामीटर में कोई भी चेंज करूं और वो एक्चुअल में रिफ्लेक्ट बैक करे तो वो मेरा क्या कहलाता है, कॉल्ड बाय रेफरेंस कहलाता है. अगर वो रिफ्लेक्ट बैक करता है तो वो मेरा क्या कहलाएगा, रेफरेंस. लेकिन अगर वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगा तो वो मेरा क्या कहलाता है, एक्चुअल. अब रिफ्लेक्ट बैक का क्या मतलब है, मतलब अगर मान लो मैंने ऊपर P की वैल्यू में कोई चेंज करा, P इज इक्वल टू P+1 कर दिया, मींस मैंने पास करा 4000, यहाँ गया 4000 प्लस 1 कितना हो गया, 4001. अब जब ये वापस आएगा और मैं उसे कहती यहाँ पर प्रिंट करो, यहाँ पर मान लो ये मैंने फर्स्ट वैल्यू जो भी मान लो इसको मैंने यहाँ पर P इज इक्वल टू 4000 डाला होता और यहाँ मैंने वेरिएबल पास किया होता P, तो वो क्या करता, मुझे प्रिंट P करने पर रिटर्न वैल्यू फिर भी मुझे क्या दिखाता, 4000. यानी कि वैल्यू में चेंज नहीं करता. जब वो फॉर्मल पैरामीटर का चेंज एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता देन इट इज कॉल्ड एज माय कॉल्ड बाय वैल्यू. और जब वो वैल्यू रिफ्लेक्ट बैक करती है, चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज अ रेफरेंस. अब इसके लिए हम कहते हैं वैल्यूज, पासिंग वैल्यूज जो है अगर वो इम्यूटेबल टाइप की है, इम्यूटेबल मतलब विच कैन नॉट बी मॉडिफाइड. और मॉडिफाई किसको नहीं किया जा सकता, वी कैन नॉट मॉडिफाई अ नंबर, वी कैन नॉट मॉडिफाई अ स्ट्रिंग, वी कैन नॉट मॉडिफाई अ टपल. मतलब अगर मैं इन तीनों में से कुछ भी चीज डालती हूँ तो ये वैल्यूज कैन नॉट बी ऑल्टर्ड. इसलिए वो चेंजेस नीचे मेरे फंक्शन कॉल में रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेंगे. लेकिन अगर मान लो मैंने म्यूटेबल टाइप की वैल्यूज डाली है लाइक लिस्ट एंड डिक्शनरी, तो जो भी चेंजेस मेरे यहाँ से ऊपर जाएंगे और ऊपर कोई भी अगर मैं चेंज करती हूँ तो वो मुझे क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा. मीन्स वैल्यूज कैन बी ऑल्टर्ड. एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आई यूज 2 फंक्शंस जिसके अंदर मैं आपको म्यूटेबल और इनम्यूटेबल टाइप की वैल्यूज पास करके और विदाउट एनी चेंजेस कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का एग्जांपल देके आई विल एक्सप्लेन यू. फॉर टुडे दिस इज इनफ. तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वन इज एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स में क्या डिफरेंस होता है, अनदर इज कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है. सो 2 मार्क्स ईच, दोनों के अंदर वी कैन राइट 1 एग्जाम्पल एंड वी कैन राइट द डेफिनेशन. These are the 2 marks as per the board exams. Thank you.